this is the last session, and I always wonder why there should be a last session. एक हमारे फ्रेंड है सरदार जी जो दिल्ली से कन्याकुमारी जा रहे थे, तो उनका रिजर्वेशन हुआ लास्ट डे में, तो बड़ा लंबा सफर था, दो रात काटनी थी। तो लास्ट डब्बे में बैठ के हर बार गाड़ी रुकती थी तो बड़े एक्साइटेड थे कि जाके कुछ लेंगे खाएंगे, लेकिन उनका डब्बा प्लेटफॉर्म के बाहर आ रहा था। तो कुछ कर नहीं पाए, नागपुर में आए तो बड़ा बोले आधे घंटे का हॉल्ट है, और लकीली नागपुर का स्टेशन बड़ा है, तो उनका जो बोगी था तो आधा बोगी प्लेटफॉर्म पे था, तो बड़े खुश हो गए, खाना वाना खा लिए, सब कुछ कर लिए, तभी भी टाइम था। तो देखिए स्टेशन मास्टर का रूम है, तो स्टेशन मास्टर के रूम में गए और बोले कि भाई देखो, एक तो लास्ट डब्बा होना ही नहीं चाहिए, और अगर रखना है तो कहीं तो बीच में रखा कर। So when we talk about creativity, the dictionary of creativity and the dictionary of design, I mean, there is a dictionary within creativity and within design as well. But if you go by the meaning, as stated by Rohit ji, it's got very little to do with the art form and the paint form and the dance form. That might be very small. It's about how you think, what you think, whether you have an ability to have a bird's eye view and create a solution that becomes a design for many to follow. Are you getting my point? So it's all about how one thinks. And in our education system, when actually we became independent after a lot of hardship, as you all know, in 1947, then we became a socialist form of government. We wanted to become an industrial nation. We wanted to create jobs because we had a lot of population. So India decided to go one way, but in the education system that we followed, which was designed in 1956, we kept English at the top. Then came mathematics, then came physics, then came chemistry, then came botany, zoology, history, geography, civics, economics. We forgot about creativity, design, performing arts, sports. And as we went to schools, we never had marks for any of these topics. And that's why we grew up to be very different people. The creativity has gone out of the window. We were systematically told how not to be creative. But there was that one kida in all the Indians. Because here, there were a lot of people who have never gone to school. In our film industry, we are about 23-24 lakh people across India. And we only had two schools. One was called FTI and one was called SRFTI. And both the schools put together took only 70 students. Now for such a big industry that we built in 110 years, we are the largest filmmaking country in the world. We make about 1800 to 1900 films in a year. 1800 to 1900 films get censored in a year. So the creation might be more than 2000. And only 1000 odd films get released in the theatres. So as these many films were getting made, and we had very little schools, and that too were giving a 2-year diploma, how do you think this wonderful storytelling ecosystem got developed? Because kids learn on job. Many of them were dropouts, but they were creative. There's some element in every Indian which is very popular and which is known as jugaad. And that jugaad was that creativity that we all had. And how does one see where it began, how it began, and why it began? So I'm going to take you through a very small story, because I am in the business of storytelling. And I believe all of you are in the business of storytelling.
agree with me? Yes. Some people are nodding like this, I can understand. So we are all in the business of storytelling. Once upon a time, 10,000 years ago, as the animals lived in the caves, even human beings lived in the caves. As the animals did hunting, humans also did hunting. They didn't wear clothes, these guys also didn't wear clothes. But there was something, that's when we say that we were nowhere. Where were we? We were nowhere. There is Chinese here. Yeah. So when we were living with those animals 10,000 years, we were nowhere. But there was something on the top floor of our body, which was called mind, which had creativity and design, which was absent with many species that were there on the earth. And that's when we got civilized. We started living in communities, small huts were made, the food was cooked, and we started wearing clothes. So from nowhere, we all went somewhere. Where did we go? Somewhere. From nowhere, we all went somewhere. And when we went somewhere, that kid of creativity and design didn't stop. A mankind invented a wheel. You know wheel? Which was not God-given, which was invented by a human being. And then, from nowhere we went somewhere, and then somewhere that Kida wanted to take us everywhere. So we wanted to go here, there, explore these things. So much so that we started going elsewhere. That we started having breakfast in one city, lunch in another city, dinner in another city. And we wanted to be everywhere. Correct? From nowhere to? No. Nowhere to? Somewhere. And from somewhere we went? So when we went everywhere and we were exploring the world, slowly we realized that we are elsewhere. Where are we? Because many of you are sitting here. Some of them have their mobile phones like this. When you are in your drawing room, grandpa, grandmother, grandfather, father, mother, everybody is sitting together, but everybody is elsewhere. Where are they? So the power of creativity, the power of design is to bring you now here. Where? Now? Here. In the presence. So this is a story of nowhere to now here. So we went from nowhere to? Somewhere to? Elsewhere. Sorry, everywhere. Everywhere to? And elsewhere we have to have our businesses, which brings you now. If you are not able to bring your consumer now here, if your story is not bringing your audience now here, if your product is not bringing your customers now here, you will miserably fail. And that's why the creativity has to be an integral part of our day-to-day life. We need to be so creative and we need to design systems which actually works and works in a way that actually gives you a lot of power. I'll tell you a small story. At one point in time, there is something called as a final push. Do you know what is the final push? Do you all know eagles? Eagles lay their eggs on the top of a hill and on very high positions. And then, as the eggs hatch, the birds come out, they are fed there. And then every time these birds are watching, they are always on the cliff. And they are watching down. And they are always having a fear that they will
You actually push them so that they start falling, and in the process they start learning how to fly. So in the businesses today, we have to realize that we always keep watching our businesses from the cliff. But there has to be a moment that we need to do a final push. And how will you do this final push? Because it's scary. The businesses are very dear to you. Your products are very dear to you. Your employees are very dear to you. And you dare very little to give a final push. And to give this final push, there has to be a lot of considerations. And what are these considerations all about? Is something that we need to really, really see. That how this evolution has actually taken place. We all create businesses. We are all talking about transformation since the morning. We are talking about the importance of transformation. We also were talking about the branding and building reputation. And what a session that we had today, both these sessions, the first two sessions that we had in the morning. The complete reputation building actually takes a lot of effort. And as we take this reputation, one has to understand that the first in the mind in the laws of branding are very critically the number one in the world. When I say the first in the mind, do you know how does a product or service take a birth? Out of pain. Out of some pain. Some pain, some need. So you identify a need, and then you want to satisfy that need, and that's how you create a product or a service, and then you start building a brand, and you start building your reputation. But there is another way that we talked about in the later sessions today, which is disrupting the creation of these needs or the complete creation of product making and services, is the invention in technology. The second way, apart from identification of need, is the technology says that I can become a cell phone, which was not needed. We were happy with that phone. But technology said I can give you something which you can carry with you. Okay? The technology tomorrow will say that I'll give you something which you can fit, operate in your mind and fit it there. The technology gives you what you didn't think of. And that was not your need. But the technology says that start using me and I can become your need, and that's what AI is all about. When we were in Saraswati Vidyalaya in Nagpur, we were taken to Baroda to see Indian Petrochemical as an educational tour. And there was one Dr. Munge there. He was also from Vidarbha, a very smart inventor. And I still remember he was telling us a great story about how the invention of plastic is going to rule the world. And how they feel that plastic that they have invented is artificial wood. And they will replace wood. 50 years later, we realize that plastic was bad for us. In 1995, we all thought internet is something great. Today we are saying we cannot live and breathe without internet. Our life is revolving around the internet. And now the technology is saying that your life is going to be controlled by AI. Isn't it scary? 20 years later, we will say internet was bad. Then you might say that AI was bad. But we lived with it. The generations lived with it. But what happens to the businesses? The people who actually creatively work around and look at the business, the design proposition
in a very different way, they succeed and the rest of the people perish. And that's why we need to always see that what is the next big thing. But if you look at the MSMEs, if you look at the family businesses, even the bigger family businesses, they are ruled by the whims and fancies of the leader in the family. And the leader goes to their peak. And when the peak happens, and no sooner you think that it's plateauing on X and Y axis, that's the time for you to creatively think and design the next big thing for your company, because you cannot run on a plateau. If you continue to run on a plateau, and that's what Ram told us today morning, Shiv told us today morning, that if you get comfortable, you start perishing. And that's exactly what happens. And why does this happen? Because we are not used to a creative approach and a design approach. We want to become a copycat. Somebody has taken some franchisee and he has succeeded or she has succeeded, you want to copy that. Somebody has done something, they have succeeded, you want to copy that. So you're being non-creative. There is no design aspect to your thinking. I stay in Pune, I sold my company to Reliance and I moved from Bangalore to Pune. No sooner I moved in 2000. A lot of my friends in Nagpur, their kids all wanted to come and do an MBA in Pune. Pune is a very famous place for MBA, by the way. And they charge a hell of a lot of money for 2 years. And most of the time, these kids came with their fathers and mothers, who are my friend, their fathers and mothers I think. And they said, Uncle, मेरे को ना Symbiosis में admission दिला. पापा 20 लाख रुपए दे देंगे. मैं उसको पूछता हूँ तो Symbiosis में आना क्यों? तो majority of the kids told me, Uncle, मेरे 5-6 दोस्तों को भी ना ये admission मिला. So there is no design to your career. There is no design to your thinking for your life. And that's why we became like this, because the creativity teaching that we had was not there into our schools. We never got marks for creativity. And when you don't get marks for creativity, you don't want to study, your parents don't want you to study that. जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर लेना. अगर कोई बच्चा घर में बोलता है कि मैंने सिंगर बनना है, डांसर बनना है, या एक्टर बनना है, या एनिमेटर बनना है, या गेमर बनना है, तो जमीन खिसक जाती है पैर से. नींद नहीं आती. फिर वो तड़फड़ाते हुए आते हैं हमारे पास में कि बच्चा ऐसा बोल रहा है, क्या करें? मतलब करने. तो बोले नहीं, पहले इसको इंजीनियरिंग मेडिकल कुछ बना देते, डॉक्टर बना देते या चार्ट अकाउंटेंट बना देते, फिर अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे. तो मैं बच्चों को बोला, भाई एमबीए क्यों कर रहे हो? तो 4 दोस्त मिलके जिंदगी काटेंगे, एक फ्लैट लेके रहेंगे, मजा आएगा जिंदगी का. उनको लाइफस्टाइल चाहिए. तो मेरे दिमाग में एक दिन आया कि मैं इनको थोड़ा और पूछूं क्या होता है. मैंने कहा एमबीए का फुल फॉर्म मालूम है? तो बोले, सर मैनेजमेंट करना है. हम भी आया में बैठे हैं, तो मैनेजमेंट करना है. क्या करना है? आप मेरे को बताइए आप कि एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर्स ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आपको तो एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे, आप मैनेजमेंट कहां से पढ़े? आप तो एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं, आप तो मैनेजर बन ही नहीं रहे. उसके लिए एक नॉमेनक्लेचर है जिसका नाम है मास्टर्स ऑफ
मैनेजमेंट स्टडीज MMS, ये हमारे UGC के प्राधान्य में है। हमने एक्चुअली डिग्री चलानी चाहिए MMS, कौन सी? मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब पागल जैसा MBA चल गया, डिजाइन थिंकिंग तो थी नहीं। उसके नीचे में जो आदमी बीकॉम कर रहा था बेचारा, उसको लगा मैं BBA करूं। वो बीकॉम से अच्छा वो BBA में घुस गया, उसको लगा BBA से मेरा MBA का रास्ता फुल, और वहां से फिर मैं टाई लगा के चलूंगा। तो क्या होता है कि जब डिजाइन थिंकिंग नहीं होती है, और कुछ ये जो थिंकिंग है ये ब्रिटिशर लोगों ने और अमेरिकन लोगों ने हमारे लिए जानबूझ के नेट बनाए हुए। क्या बनाए? जब JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स बना था तो ब्रिटिशर लोगों को ड्राफ्ट्समैन की जरूरत थी, तो उन्होंने ड्राफ्ट्समैन का करिकुलम JJ स्कूल ऑफ आर्ट में थमा दिया। आज ब्रिटिशर चले गए, 76 इयर्स हो गए, लेकिन हम वही बना रहे। तो जो डिजाइन थिंकिंग होती है उसकी इसलिए जरूरत होती है कि हमको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना है। जब मैं नवभारत के पहले मैं इंश्योर में आया था इधर मार्केटिंग मैनेजर बन के यूरेका फोक्स के बाद, तो मैंने जब सर्वे किया सब लोग आइसक्रीम खा रहे थे। अब आइसक्रीम का धंधा वो टाइम पे समर में अच्छा चलता था, बाकी टाइम पे शादियों में चलता था। तो भैया अपन साल भर करेंगे, तो फिर मेरी जीवी राणा जी से बात हुई, हम लोगों ने काफी रिसर्च किया। हमको पता लगा नागपुर में दूध बड़ा डिफिकल्ट मिलता है, डेयरी का दूध अगर मिस हो गया सुबह तो बच्चों की तकलीफ हो जाती है। तो हमने दूध लॉन्च किया 92 में। तब मैंने डोर टू डोर सर्वे किया था यहाँ, जिस दिन चालू किया था उस दिन 2,500 लीटर से चालू किया था, 1 लीटर आधा लीटर का पैक। और फिर मैंने 150 बच्चे लगाए, क्योंकि मैं यूरेका फोक्स से था, और मैंने घर घर में जाके झोपड़पट्टी से लेके हर घर नागपुर का छान मारा। 7 महीने में पूरा नागपुर छान मारा, और 7 महीने बाद हम 55,000 लीटर्स पर डे थे। और हमने 2 रुपए का पैक 200 ml का लॉन्च किया था, क्योंकि हमको पता लगा कि जितने भी झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं वो ग्लास लेके 2 रुपए का दूध लेने लगते। तब दूध का जो कीमत था 10 रुपए और 12 रुपए पर लीटर। तो वो टाइम पे जो फीडबैक आता था, वो फीडबैक से प्रोडक्ट इम्प्रोवाइजेशन हमको करना पड़ता था। अब हम 200 ml दे रहे उनको, तो वो जो दूध वाला था, जो वैसी बॉटल आती थी और वो ब्लू और सिल्वर कलर का ढक्कन आता था उसका, फॉइल वाला, तो वो निकालता था, उसी में पानी डालता था और वो 10 लोगों को देता था 2 रुपए, तो डबल पैसा कमाता था। तो हम लोगों ने सोचा कि जो डिजाइन है उसमें एक तो बच्चों को अच्छा दूध मिलना चाहिए, उनकी कॉस्ट पे मिलना चाहिए, और डिफ्रीज कंडीशन में मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जो लोग का किराने का दुकान है उनको ही डीप फ्रीजर देके, जो लोग वहीं रहते किराने की दुकान यानी ऊपर मकान नीचे दुकान होते वैसी लोगों को सिर्फ डीलरशिप, क्योंकि हम 3:30 बजे सुबह डिलीवर करते थे, तो 3:30 बजे घंटी बजाए तो कोई खोल के लेने वाला तो चाहिए ना, नहीं तो कैसा होगा, दूध खराब हो जाएगा। तो जब ये डिजाइन थिंकिंग हम करते हैं बिजनेस में, तो उसके बाद में आपके पास में एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म होते हैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं। आपको हर टाइम पे जब प्लेटो आता है आपको इनोवेशन करने की जरूरत पड़ती है, और वो जरूरत पड़ने के बाद में आपने नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्टाइजेशन करना जरूरी है, सर्विस को ऑर्डर करने का जरूरी है। जो बिजनेसेस हमको चलाते हैं इसमें एक सबसे बड़ी डिजाइन थिंकिंग और डिजाइन पॉलिसी जो होती है वो टॉप से शुरू होती है। और अगर आप में से जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको ये सोचना है कि आपके बिजनेस की बेस्ट वैल्यू कब है। अगर आप भले ही 42 इयर्स के हैं, आपने 10 साल बिजनेस चला लिया, आज आप 70 करोड़ कर रहे हैं, 80 करोड़ कर रहे हैं, अगर कोई बायर आता है और बोलता है कि मैं आपको 150 के वैल्यूएशन में खरीदता हूं,
तो डिजाइन थिंकिंग ये कहती है कि आपने बेच के निकल लेना चाहिए। क्या समझे? बेच के अगर आप बिजनेस के साथ में लगाव रखोगे तो वो बंद हो जाएगा। मैं आपको डिजाइन थिंकिंग का एक और एग्जांपल देता हूं। मैं 1985 में रिपब्लिक डे परेड किया था महाराष्ट्र से, एनसीसी, और वहां से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ कनाडा जाने के लिए, और एक साल हम लोग यूथ एक्शन में कनाडा गए। उसके बाद में जब मैं नवभारत में यहाँ हेड था 95 में, तब मैं रोटरी एक्सचेंज से नागपुर से गया। तब मैं एक घर में रहता था और वो डेंटिस्ट थे, और वो डेंटिस्ट मेरे को जब उनके क्लिनिक में ले गए दिखाने के लिए, तो बोले मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ। तो मैंने बोला क्यों बेच रहे? ऐसा कैसे डेंटिस्ट का बिजनेस बेच सकता है? तो वहां पे बाकायदा इन्वेस्टमेंट फर्म्स थी, वो आइडेंटिफाई करती थी कौन से बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो डेंटिस्ट्री में जब पास होने वाले हैं वो टाइप के उन लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और जब वो अच्छे बच्चों को आइडेंटिफाई करते थे, वो बोलते थे कि हम आपको फंड करेंगे, आप जो आदमी को रिटायर होना है उसका बिजनेस करेंगे। तो वो आइडेंटिफाई करते थे, और फिर मैंने जाके वो सब चीजें समझी। तो उनकी डिजाइन थिंकिंग ऐसी थी कि एट द एज ऑफ 56 ही वांटेड टू रिटायर। उनकी 30 साल की प्रैक्टिस ऑलरेडी थी। उनके करीबन 2,500 नोन कस्टमर्स थे, आजू बाजू के विलेजेस से, गांव से आने वाले भी। उनका 2 साल का ट्रांजिशन रहता है। डिजाइन देखिए, 2 साल का ट्रांजिशन होता है जब ये कंपनी उसको फंड करती है बच्चे को, वो बाजू में उनके टेबल लगता है, और जैसे कस्टमर्स आते हैं तो ये डेंटिस्ट होता है, ये उसको भी इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरा असिस्टेंट है। वो हिस्ट्री वो देखता है, फिर ये ऑपरेट करते हैं। 1 साल ऐसे चलता है। 1 साल के बाद बाजू वाली सीट पे ये महाशय बैठते हैं और इनके सीट में वो बैठता है, नेम प्लेट चेंज होती है, और फिर 1 साल ये उसको गाइड करते हैं और वो लीड लेता है, और वो 1 साल में $2 मिलियन में उन्होंने अपना डेंटिस्ट का धंधा बेच दिया। तो मैंने जो फाइनेंसर्स थे उनको पूछा कि भाई ऐसा और कौन से बिजनेस में होता है? तो वहां पे सीए को सीपीए बोलते हैं। तो बोले सीपीए में होता है, लॉ में होता है, लॉयर भी बेचते हैं। तो उनके साथ जाके मैंने देखा, यहाँ पे आके बोला मैंने लॉयर को, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों को, बोले पागल हो गए, ऐसा कभी होता है कि मर जाऊंगा मैं लेकिन धंधा नहीं बेचूंगा। तो जो बिजनेस का जो डिजाइन थिंकिंग होता है वो आपका इस तरीके से होना चाहिए कि जब आपको ऐसा लगे कि ये पीक पे है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे मैं कैसा एग्जिट हो सकता। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पे एग्जिट नहीं करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे आगे में मेरा बिजनेस। कैसे आप इवैल्यूएट करें? आएंगे, उस पर भी आएंगे। तो सबसे पहली चीज होती है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग ये आपके डिजाइन में होना चाहिए। आप जब अपना बिजनेस लिखते हो, बिजनेस प्लान लिखते हो, तो एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है ये भी होना चाहिए, और सक्सेशन प्लानिंग जो है वो भी होना चाहिए। अभी मैं गोरेगांव पार्क में रहता हूँ, पूना में। मेरे बिल्डिंग में मेरे 2 फ्रेंड हैं, उनके नाम नहीं पता मैं, लेकिन एक का बिजनेस 500-600 करोड़ के बीच में, एक का बिजनेस 700 से 800 करोड़ के बीच में। एक को सर जानते हैं क्योंकि वो एक्सेल्स का बिजनेस करते हैं, ओईएम है, ऑटोमोबाइल। फादर मदर एंड सन 33% पार्टनर। फादर मदर 80 के ऊपर है, बच्चा अकेला है, वो 53 इयर्स का है। जो
कहां से? भाई परेशान है, मैं करूं तो करूं क्या? तो जो सक्सेशन प्लानिंग है ये अभी होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे जो सीए लोग हैं, जो कितने सीए यहाँ पे? I used to be a CA. I like that you used to be a CA because I'm not going to say very good things about you. हमारे सीए बताते हैं कि देखो यार, आप तो पार्टनरशिप रखो या प्रोप्राइटरी रखो या एलएलपी रखो, मैक्सिमम पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम पैसा विड्रॉ करने के बाद में भी कम प्रॉफिट दिखाओ, टैक्स कम भरो। लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो तुमको टीचर, अभी तुमको लिस्टिंग करना है तो तुमको 4-5 साल की हिस्ट्री बिल्ड करना पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड करना पड़ता है, टॉप लाइन बॉटम लाइन बिल्ड करना पड़ता है। अगर मैं प्राइवेट इक्विटी भी लाना चाहूँ, जो दूसरी फैमिली है वो फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है। अगेन वन ऑफ द रेयरेस्ट बिजनेस, उनके कंप्यूटर्स कोरिया और जर्मनी में, they are not able to compete what these people doing in India right now, especially after COVID. अब दो भाई, उनके फादर 90 years और ये दो भाई दोनों की 50s में, और दोनों के दो बच्चे हैं, वो सब फॉरेन में, वो इंडिया नहीं आना चाहते। अब इतने बड़े बिजनेस का करेगा, प्राइवेट इक्विटी लाने के लिए 4 कंपनियां बनाइए, 4 अलग अलग प्लॉट लेने पड़ते हैं MIDC में, और चारों या तो पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरी। तो फंडिंग तो आने से रही, जो भी फंडिंग मिलेगी बैंक से मिलेगी, वो भी क्रेडिट एक्सटेंशन मिलेगा, या तो नॉन फंड बेस्ड फंडिंग मिलेगी एलसी के लिए। सो द डिजाइन that we should do in our businesses to always ensure that we are at the edge. And when you think every single day that you are at the edge, only then you can plan your life and business together. Many people think that doing a business, they want to do everything every day, and then they want to be tired by 8 o'clock in the evening, go back, maybe have a drink. If they are staying in Nagpur, they will take a wash and go for reception. So what happens is, your planning and your creativity at work starts from the time that you go to sleep earlier, because your plan for the next day already started happening when you are going to sleep. Then you wake up with the same anxiety that this is what is my checklist today, and I'm going to do these things. And when I think that I have to do these things, I learned one thing very hardly. When I ran my companies, and I've sold 2 companies, I'm going to sell my 3rd company in the next 1 month's time. I learned one thing, that no point working hard all day. I make sure that I design the company in such a way, design the policies of the company in such a way, design the recruitment in such a way, and the reporting structure in such a way that I have to be free. If I am not free, then who will do the firefighting if there is required? If I am not free, then who will think of what is the next big thing that is going to happen? If I am not free, how will I encourage my leadership? And that's why in the design of your running of your businesses, the people at the top, at the leadership, have to be free. And you have to tell the same thing to your leadership, that I want you to be free when I call you, you need to be here with me to discuss. And if you say that I am busy with this work, then my design is wrong. So, you need to put that whole system to work. I would not call it a culture. It should not become a culture, because at one point in time, and every time
that you need to go and do something at a grassroots level, you should still be able to go and do it. If you don't do it, you will miserably fail again. And that's why we can give you 1,000 examples, but I don't want to give you the brands. We have discussed even like great brands. I have another PDF which I can send to Rohit and he can forward it to all of you about why the 50 topmost brands in the last 40 years failed. And we discussed about it in the first session today. Because some of these things actually lack. And when you're building the reputation of your company or your service, and very rightfully so the way the presentation went today about the reputation, you need to understand in the laws of branding, any idea or service which makes the first impression in your mind will always be a brand leader. Yes, a Xerox. So why it's called a generic brand? What is it called? Because that was the first idea introduced. The second one will have to do a lot of minor and bring in a differentiator to make his or her existence. Because they will always be number two, because that mind space of the target audience is consumed by the guy who first came. And that's why when you think of launching something, you need to really see who are your competitors, whether there is a competition at all, and whether your services or your product is actually going to be the first in the mind, whether you can become a top brand, a brand recall that happens. And as rightfully asked today morning, who owns the brands? The companies don't own the brand. Brands are in the minds of the consumers. And brands are in the minds of the customers. Do you know what is the difference between a customer and a consumer? Actual user is Correct. People who are interested are customers. And people who actually use your services or products are consumers. So you have a responsibility to address the customers. And you have to service the consumers in the proper way. You need to ensure that their experience has been the best. And that's why the brands that are at the top are always the first who came with that service. And to give you an example, as simple as, when we were in college, there was Prasanna bus service between Mumbai and Pune. That was a big need, Nagpur and Pune, sorry. And Prasanna became very famous, it became a brand. And then many started, but they were always number two. So the first in the mind will always become a bigger brand. And so are the many brands that we have in the city of Nagpur as well. And as we see that these brands have to retain their positions, they need to constantly innovate. And if they don't innovate, slowly they will perish. And that is exactly what has happened over a period of last 20-25 years. And when you actually do this into your businesses and you may say that I am working in a company, how does that matter? I'll give you a great example. Here, you all know that we have IS offices. You know IS offices. Collector, commissioner बन के आते हैं. ऐसे secretaries बन के भी आते हैं सब department में. Very sharp guys. लेकिन ये हमारे IS ऑफिसर है, ये सेक्रेटरी है इंडस्ट्रीज के, आज इधर कॉन्फ्रेंस में आए, वहाँ पे सीएम ने नोटिस निकाल दिया, जीआर निकाल दिया कि इनकी ट्रांसफर कल से एनवायरमेंट में होगी। तो ये यहाँ से मुंबई जाके एनवायरमेंट के ऑफिस में जाएंगे, अपने
इंडस्ट्रियल ऑफिस में नहीं जाएंगे। अब वो फाइल हमने जमा करके रखी है, वहां पे साइन कौन करेगा? तो जब इंडस्ट्री वाले, जब गवर्नमेंट से काम करते हैं, हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, हमारी फाइल ऐसी रह जाती है, 2.5 साल निकल जाते हैं, फिर नया ऑफिसर आता है, उसको जीरो से समझाते हैं एनिमेशन होता क्या। तो यहां पर भी सक्सेशन प्लानिंग डिजाइन आनी चाहिए। अमेरिका में आपने सुना होगा, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, इलेक्ट होने के बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद 3 महीने बाद तो ऑफिस जाता है व्हाइट हाउस। उसके बीच में उसकी पूरी टीम को हैंडओवर करते हैं, पहली टीम जो जा रही हो तो पूरा अपडेट करते हैं कि कहां पे क्या सिचुएशन है, फाइल्स किधर है, कौन सा क्या करने का है। इसको बोलते हैं सक्सेशन। तो हर लेवल पे हमको सक्सेशन प्लानिंग निकालनी चाहिए। अब ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, ये इवन जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज है, इसके लिए भी सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको यहां से इंप्रोवाइज करना है तो हम कहां जाने वाले हैं, इसको कैसा फेड आउट करने वाले हैं, इसकी भी डिजाइन होनी चाहिए, और नए को इंट्रोड्यूस कैसा करना है उसकी भी डिजाइन होनी चाहिए। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन है, ये कहीं ना कहीं हमारे जहन में नहीं है, क्योंकि हमको क्रिएटिविटी से दूर रखा गया है, हमको स्पोर्ट्स से दूर रखा गया है। अगर हर बच्चा जैसा मैथ्स पढ़ा है, जैसा इंग्लिश पढ़ा है, वैसा ही स्पोर्ट्स का एक गेम पढ़ता और क्रिएटिव का एक क्लास करता, म्यूजिक करता, ड्राइंग करता, डांस करता, तो आज हम लोग कुछ और होते। क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो आपको गेम खेलने के बाद ही पता लगती है। भले ही टीम का कैप्टन हो, लेकिन एक टेम्पररी कैप्टन सिचुएशन पे लीड लेता है, जो ऑफिशियल कैप्टन नहीं रहता। हमको एक दूसरे को कैसा सपोर्ट करना है और हमारा गेम खेलना है, ये हमको खेले बगैर समझ में नहीं आ सकता। इसलिए उसका डिजाइन उस तरीके से किया हुआ है। अगर वो डिजाइन को हम लोग हमारे इसमें नहीं लाएंगे, हमारे इकोसिस्टम में नहीं लाएंगे, हमारे डे टू डे वर्किंग में नहीं लाएंगे, तो हम उस तरीके से सोच ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए हर करिकुलम के अंदर क्रिएटिविटी और डिजाइन थिंकिंग ये आना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आए तो आपकी स्टोरी अधूरी है, आप ऑडियंस को पकड़ नहीं पाओगे, लोग एल्सवेयर चले जाएंगे, क्योंकि ये सब अधूरा है। ज्ञान बहुत हो गया नहीं, सब प्लान करें, धंधा कैसे बेचते हैं? वो रात को क्या खाना खाने का प्लान कर रहे हैं, वो बता रहे हैं बना के रखे। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। चलो, एक बार एक टोपी वाला था, आपने सुनी है स्टोरी? तो जो टोपी वाला था ना, मैं छोटे गांव में रहता था और बड़ा एंटरप्रेन्योर था टोपी वाला। साइकिल में बहुत सारी टोपियां लगाता था, लेफ्ट राइट थैलियां लगा के एक गांव से दूसरे गांव टोपी बेचते हुए जाता था। पूरे दिन में 7-8 विलेजेस कवर कर लेते। लेकिन क्या था, बीच में जंगल आते थे, ये होता था वो होता था। एक बार वो टोपी बेच के, दोपहर का टाइम था, 3-4 विलेजेस हो गए, जंगल के बीच में से गुजर रहा था, काफी थक गया था, तो उसने सोचा कि मैं रुक के टिफिन खाऊं। तो वो टिफिन खाने लगा और टिफिन खाने के बाद वो इतना थक गया था कि उसको वहीं नींद लगी। नींद लगी तो थोड़ी देर के बाद उठा तो देखा पूरी टोपियां गायब हो गई और पूरी
टोपियां ऊपर बंदर लोग ले गए हैं, आपको मालूम है? और सब झाड़ के ऊपर बंदर बैठे थे और सबने अपनी अपनी एक टोपी पहनी हुई थी। अब इसके बाद इसकी टोपी छोड़ के बाकी सब टोपियां गायब हो गई थी। बड़ा परेशान हुआ, बड़ा एक्सपीरियंस बिजनेसमैन का, लेकिन बहुत परेशान हुआ, बहुत चिल्लाया, इधर उधर कोई हेल्प करेगा, कुछ नहीं होगा। पत्थर उठाया, फिर लगा कि अरे कैसा मारू ये वो सब, तो उसको ध्यान में आया कि जैसा वो कर रहा है उसकी बंदर भी वैसी एक्शन कर रहा है। तो उन्होंने बंदर को मस्त अपने एक धुन में लिया, एंगेज किया, सब बंदर उसके समान एक्टिंग कर रहे हैं और फिर अपनी टोपी निकाला और ऐसी फेंका। तो सब बंदर ने भी अपनी टोपी निकाला और इसी तरफ फेंक दिया। तो इसकी एक टोपी तो चली गई, लेकिन बाकी सब टोपियां जमा किया और आ गया। आके इसने अपने बेटे को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था, ये हो गया। फिर ये थोड़ा बूढ़ा हो गया तो इसके बेटे ने बोला कि पापा एक मुद्रा योजना आई है, मेरे को लोन मिलने वाला है, मैं मोटरसाइकिल लेता हूँ और उसके पीछे ट्रॉली भी लेता हूँ और आप अभी आराम करिए, मैं ये बिजनेस चालू करता हूँ। तो उसने ये बिजनेस शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसके पापा गुजर गए, लेकिन ये बहुत स्मार्ट था। मुद्रा योजना का पूरा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सबका उपयोग किया उसने और 15-20 विलेजेस कवर करने लग गया और स्टॉक ऑलमोस्ट 10 टाइम ज्यादा लिख गया। ऐसा ही वो घूम रहा था एक बार, तो दोपहर में जंगल के थ्रू बड़ा लंबा रास्ता था, रुका, भूख लगी थी, खाना वाना खाया, उसको भी नींद लग गई। उठा तो देखा पूरी टोपियां गायब, अब सब बंदर पहने हुए थे। इसका एक्सपीरियंस कम था तो थोड़ा चिढ़ गया, एकदम चिल्लाने लगा, पत्थर फेंका, बहुत ऐसा ऐसा करने लगा। तो उसको लगा अरे बंदर भी मेरे सामान कर रहे हैं, तो उनको भी एंगेज किया उसने और अपनी टोपी निकाल के फेंका, लेकिन कोई बंदर ने टोपी वापस नहीं फेंका। बहुत रोया, ट्रॉली में बैठ गया, रोते रहा। मैं बोला अभी तो मैं लूट गया, मेरा लोन कैसा वापस करूंगा, मैं क्या करूंगा, बड़ा सोचते रहा। और 1-1.5 घंटा गुजर गया, वहीं बैठा रहा। तो एक सीनियर मंकी था, वो झाड़ से उतर के नीचे आया, इसके बाजू में आके बैठा, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है? बोला देखो मेरी पूरा स्टॉक चला गया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। ये बोला ऐसा मेरे फादर के साथ भी हुआ था एक बार, उन्होंने मेरे को बताया था, तो मैं उन्होंने ऐसा करके टोपी फेंका था, सबने फेंक दिया, लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। तो बंदर उसको बोलता है कि भाई मेरे ग्रैंडफादर ने भी ऐसी एक स्टोरी मुझे बताई। तो डिजाइन से क्या लर्न करना है और क्या नहीं करना है, ये तो अपने हाथ में होता है, लेकिन डिजाइन को इंप्लीमेंट करना वो भी हमारे हाथ में होता है। अगर बंदर आपको एक लाइफ से दूसरे लाइफ में जाना सोचना पड़ेगा, दैट्स योर डिजाइन। और एट व्हाटएवर एज you should be capable of building another business, that is also your design. And at whatever age you should be able to mentor people who can design new businesses, and you can take 10% of that company and still allow them to run that business, and you can still give them the wisdom that you have. That is also design. It's not necessary that you should set up a business every single day. And that's why the businesses have to look good. The businesses have to be meaningful. And every research that we do should not be a cut-based job. It has to be a research for purpose. Until the time you don't have that research conclusion for implementation, your research is not complete. And even if you have that research towards implementation,
You need to create prototypes, you have to create proof of concept, and you have to test it at every level. Kindly repeat. As you think that you need to create these businesses, till the time you have completed your research till the implementation of your business, finding the right consumer, how to reach them, what are the means of reaching them. At the same time, you have to test it at every level. You have to create a proof of concept and learn from that proof of concept and improve before you go to the big market. That is design thinking. That is where you customize your service or product, fine-tune your product and service to be relevant to the audience or the consumer. And that's how you would make success of your business. And mind you, even after doing all this, next day you go to the office, you have to be free to see how it's doing. You have to be free to take criticism that has been done by the testers and look at that criticism with unbiased mind and make sure that you do those modifications before you take it back to them. And that's exactly where you will become successful. And the story of your business will be carried forward in the same way. So I wish all of you the very best and tell the best brand story of your life and of your business. All the best. If you have any questions, we can Thank you, sir. We are open for question answer, but before asking any question, I would request you to keep it crisp, clear, and to the point. No suggestions, just the questions. Yes, sir. सर एक्चुअली हम कॉमर्स की कोचिंग क्लासेस लेते हैं. Sorry. एजुकेशन बिजनेस में हम लोग हैं 11th 12th एंड बीकॉम भी लिए. तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एजुकेशन सेक्टर में हम लोग क्या क्रिएटिविटी लाए स्टडी में जिससे उनका करिकुलम उनको बोरिंग ना लगे. उनका करिकुलम थोड़ा सा हम लोगों ने स्टार्ट किया थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड जिसमें 11th 12th के बच्चों को हम लोग छोटा सा स्टॉल लगाते थे और फिर उनको पढ़ाते थे कि पार्टनरशिप क्या है, सोल ट्रेडिंग क्या है. लेकिन इसमें और क्या क्रिएटिव कर सकते हैं जिससे बच्चा एजुकेशन और अच्छे से ले और क्रिएटिविटी हमारे बिजनेस में दिखे, मतलब हमारा भी ग्रोथ दिखेगा. अभी मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ. थैंक यू. पहले क्या होता था, हम सरस्वती विद्यालय जाते थे और रोज जब हम क्लास में जाते थे ना, तो रोज ऐसा लगता था कि टीचर ने कुछ भी नया सिखाया. और टेक्स्ट बुक रहने के बाद भी वो लेसन तभी पढ़ते थे जब टीचर ने क्लास में ले लिया, तब तक के पढ़ते नहीं. अब वो टीचर ने बताने के बाद में हमको समझ में आता था कि ये ऐसा क्यों है और हम उसकी पढ़ाई करते थे. जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे पेरेंट्स को मालूम था कि कौन सी इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम लोग एक्सपोज थे. आपके बच्चे नहीं है? आप फादर है कि नहीं है? नहीं. तो अभी जो फादर लोग हैं उनको पूछेंगे कि उनको मालूम है क्या उनके बच्चों का एक्सपोजर कहाँ पे है, तो उनको नहीं मालूम. They are overexposed. आज जो ज्ञान पट्टी हम बता रहे हैं वो बच्चों को ऑलरेडी मालूम है. आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है कि आप उनको बोल दो कि अपन नेक्स्ट महीने में ये 5-6 टॉपिक्स पे काम करने वाले, इसका मटेरियल यहाँ पे ऑनलाइन पे तुम पढ़ के आना, उसके बाद अपन डिस्कशन करें और फिर आप उनको दुनिया दिखाने ले जाओ और फिर उनको पढ़ाओ, उनके साथ डिस्कशन करो. आप अगर एलन की कॉपी करोगे तो बच्चा सुसाइड करेगा. तो बात यह है कि हमने उनको इतने स्ट्रॉन्ग इसमें डाल दिया कि भाई ये रेस में दौड़ना है, उसके लिए ये सब चीजों की जरूरत है. क्या औजार है, इसके बिना तुम्हारी दौड़ अधूरी. और जो बच्चा दौड़ नहीं पाता है
जो बच्चा काम रह जाता है, क्योंकि आईआईटी में तो उतने बच्चों ने, और मेरे को समझ में नहीं आता है कि आईआईटी में इतनी रेस लगा के जाने के बाद तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, तुमको जो आईआईटी में जाना है, ये तो तुमको मिलता ही नहीं, तो लिस्ट में जो लगेगा वो हो। ये कैसा है? तो हमको कहीं ना कहीं डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसी एक दो फैकल्टी रखो जो क्रिएटिव इंडस्ट्री से, और वो फैकल्टी को बोलो कि भाई हमको ये क्रिएटिवली पढ़ाने का। देखो, आपको ये देखना है कि उसको कितने मार्क्स मिले, वो इम्पोर्टेंट नहीं, उसका लर्निंग आउटकम क्या है, उसको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया लाइफ टाइम। समझ रहे क्या? मैं फालतू बात कर रहा हूँ क्योंकि ये रेस वाले इसमें तो आते ही नहीं है ना सर। जब मैं स्कूल में था ना 10th 11th 12th में, वो टाइम में एक स्कूल की समझदार टॉप पे थी, 10-10 बार। मेरी मदर सीक्रेट में की टीचर थी। जब मैं 10th में था ना, वहां का एक लड़का था चोपड़े करके, वो फर्स्ट आया था, फर्स्ट मिनट। हमारा तो कॉम्प्लेक्स में 42% मिला, बड़े मुश्किल से पास हुआ। अब घर में चेहरा कैसा देखा है? माँ टीचर, सब आंटी लोग टीचर, हमारी स्कूल है तो माल, तो बड़ा बदनाम था। तो क्रिएटिव करने जाओ तो ये सब चीजें मार्क्स नहीं आते हो, लेकिन लर्निंग आउटकम जो है वो तगड़ा होता है। रिस्क लेने को तैयार है क्या? फिर काम हो सकता है। और कोई क्वेश्चन? Hello sir. हाँ? My question is, you told us one thing, that when a business reaches its maximum potential, like when a business is touching a turnover of 75 to 80 CR. No, that is just hypothetical. Okay. Let's take an example. If a business has reached its maximum potential, so you told us to take an exit. So sir, my question is, Think of taking an exit. sir, we have always read that think big and make it large, and if you have no business which is like reaches maximum potential, so why not think innovatively and like increase its turnover? Why not do? If you do that, Yes. nothing like it. So that means that it has not reached the plateau. Are you getting my point? Don't get confused. If it's not reached the plateau, you can continue to build it big. But you would know out of the 10-12 companies what can become a unicorn and what cannot become a unicorn. Are you getting my point? Adding to this question, how to understand where the plateau is? Plateau comes from the sales, no यार. Top line. अगर तुम्हारी 3 साल टॉप लाइन सेम रही तो तुम प्लाटो पे है ना। वो भी प्लाटो है, वो तो बॉटम प्लाटो है, तब तो जल्दी एक्सीड हो जाएंगे। Sir, Sir, glad to hear you. My question is कि आपने अभी कहा था कि entrepreneur should be free to explore more, है ना? So what are the basic principles we have to follow? I know only one कि second level of leadership set up करो. Apart from that, what many more are? I basically run an IT branding and advertising company in BStech. Semi-automated है sir. Second level of leadership set है, but फिर भी मतलब intervention needed. So what are the basic principles we have to follow? Okay, so just think for a while that if you get married in US, for example, and you have to, your husband says no, next 2 years we will live in US, have a baby. Your business has to still run here. Okay, if you have achieved that, you have achieved it. So think of a situation that you are not there. Whether your business can continue to run. So whether you build that second leadership to that extent is the question. You will start getting your answers. Yes, sir. sir, as you said कि आपने देखना है कि आपका प्लेटो कब आ रहा है. Last 3 year, 4 year, 5 year का सेल अगर stagnant है, तो आपका प्लेटो आ गया है. But if the same type of business run by other family, वो अभी भी scale कर रहा है, that means कि आपका प्लेटो wrong है. Yeah.
then in that case दैट केस वो जो अच्छा कर रहे हैं उनको बोलो तुम मेरा बिजनेस ले लो। वो इतना पैसा दे दो। you have to design it that way कि आप कभी भी exit कर सकते हैं। एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है ना वो हमारे बिजनेस में नहीं है आजकल। Okay. बट इफ यू क्रिएटिवली थिंक यू मस्ट हैव एन एग्जिट स्ट्रेटेजी बिकॉज आप बिजनेस बनाते हो पेट भरने के लिए, बिजनेस बेचते हो पेटी भरने के लिए। समझ में आया? पेटी तभी भरेगी जब बिजनेस बेचो, नहीं तो अपना पेट भरो। और वो जो पेटी भर जाएगी सर, फिर से एक नया बिजनेस के लिए सोचना पड़ेगा। थोड़ा घूम के आना इधर उधर, तब तक आपको आइडियाज आ जाएगी। बोलिए सर। उधर Basically, branding like major part is through advertising. Being into seasonal business, होता है कि there's certain amount of budget you assign for your advertising. मेरा ये समझना है कि क्या करना चाहिए. For example, 3 महीने या तो you bombard the entire thing with regular advertising, या you keep a little sum of that entire chunk for that brand of yours to be remembered throughout the year. वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट करके एक होती है, Correct. हम वो डिफाइन करते हैं। अगर आपका कस्टमर 3 महीने में आता है 12 महीने में से, Right. और आप 12 महीने खर्चा करते हो, Not exactly same amount. हाँ, ठीक है, फिर भी 12 महीने खर्चा करते हो तो कीप द ब्रांड। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली मार्केट में मार्केट एस्टेब्लिश करना शुरू करो, और विंटर में वहां पे हीटर बेचो, सेम ब्रांड। समझ में आया? और बाकी इसमें आपका राम खुला है। जब ठंडा है जब गरम करो, जब गरम है तो सर, आप 42% की थोड़ी स्टोरी कौन सी? जब आप 42% में तो सेंटर से बम्बार्डिंग हुई, हाँ। रजिस्टर है तो उसमें से क्रिएशन क्या है? उसमें क्या हो गया था कि मैं तो 12th में तब था तो महाराष्ट्र स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेला, तो जमशेदपुर गए थे हम लोग फाइनल्स के लिए। मैच तो हार गए थे, लेकिन सब पूरी टीम को टाइफाइड हो गया, तो वापस आए तो प्रैक्टिकल निकल गए, तो फिर मार्क्स तो मिल गया प्रैक्टिकल, लेकिन थियरी का बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना, तो अपने को आंसर करना पड़ा। तो कैसा तो भी किया, लेकिन अच्छा बात ये था कि मेरे 5-6 दोस्तों में वो फेल हो गए। उसमें तो मैं अच्छा था, उसके बावजूद बीएससी करना था क्योंकि एयरफोर्स में जाना था। तो बाकी फिर जितने सर लोग थे जो ट्यूशन लेते थे, वो कोई लेने को तैयार नहीं होता, तो जब वो लेने को तैयार नहीं, तो बाकी सब 10 जने दत्ता सर थे, याद है आपको? फिजिक्स के बाद में एक मैथ्स के वो दूसरे सर थे, नहीं कारखानी सर थे, और राम वो बहुत कौन से शंकर नगर वाले मुक्तिपुर। बाद में एक मैनुअल सर थे केमिस्ट्री वाले। तो मैं क्या करता था, जब 10वीं में था ना, तब से मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कैंप पे ले गया था, वहां मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। तो जब हमको पता लगा कोई सर हमको लेने को तैयार नहीं है, तो मैंने सब सर को बोला कि यार हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको क्लास में मिला नहीं है, लेकिन आपका क्लास करना है, क्या करेंगे? तो बोले हमारे पास रूम नहीं है क्लास लेने के लिए। बोला रूम में जुगाड़ करो। तो मैंने जाके प्रिंसिपल मैडम से 2 रूम लिया, शाम को 2 क्लास लगाए, 60 बच्चे हो गए थे, तो 30-30 बच्चों के सबसे मैं पैसे लेता था और सब सर को देता था। ऐसा करके मैंने क्लास लगाया, वो करने के बावजूद भी 42%। तो उसके बाद तो क्या था कि सर लोग इतने अच्छे थे, अपने दोस्त बन गए थे, तो सर को बोला सर आपके कॉलेज में एडमिशन
साथ इलेक्शन लड़े, उस बार अनीस अहमद युवा बना हमारा, तो कहानी शुरू हुई। नेक्स्ट ईयर तो आरडी परेड चला गया, तो कॉलेज तो गया ही नहीं। उसके बाद कनाडा के लिए सिलेक्ट हो गया एनसीसी से, तो कनाडा चला गया फाइनल ईयर, फिर कॉलेज नहीं गया। ऐसा करके जिंदगी फैमिली को कैसे हैंडल की? कैसे सब आपके बोले टीचर आदि सब की ये वो सब तभी भी परेशान थे, उसके बाद भी परेशान थे। तो फिर उसमें कोई यानी सोचने का कार्यक्रम ही नहीं था। और कोई क्वेश्चन? यस सर, एक क्वेश्चन। हाँ सर आपने बोला कि जैसे मेरा बेटा है वो भी चाह रहा है कि वो गेमर बने। हाँ सर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं है जिससे वो एक काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल कॉलेज या एजुकेशन गुरु या उसमें वो दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं, खेलते हैं, दैट्स इट। व्हाट डू यू थिंक कि वो इंडिया में बहुत कम है या? देखो, जो एवीजीसी जो वर्ड है, ये सुना ही आपने? एवीजीसी करके एक इंडस्ट्री है इंडिया, जिसका नाम है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, और उसमें अभी हमने एक साल रहा। ये एवीजीसी वर्ड भी मैंने कॉइन किया था 2000 में। ये इंडस्ट्री आज के तारीख में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की 30% से ऊपर की इंडस्ट्री। कितने? गेमिंग इंडस्ट्री पूरे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की आज 15% से ऊपर है, और 2032 तक it will be 35% of the total media and entertainment industry. आप कुछ भी कर लो, गेमिंग इंडस्ट्री जो है, it is going to be bigger than the film industry, television industry and events industry put together. अगर आपका बच्चा सोच रहा है तो वो सही सोच रहा है, तो आपके बच्चे को मेरे को मिलवाइए और आप भी साथ में आइए, तो आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ, कॉलेज के साथ सब डन कर देंगे। कौन से क्लास में पढ़ो? तो बहुत बढ़िया है, अभी से तैयार करेंगे तो काम होगा। ऐसे गेम भी खेल होते हैं, तो आदमी को अलग तरीके से सोशल करते हैं। तो आपका क्या सोचना है, ऐसे गेम्स को बढ़ावा देना चाहिए या? देखो, जितने भी अभी एक क्लब पेंगुइन करके ग्रुप है, आप उस पे जाइए। एक डायनासोर वर्ल्ड करके ग्रुप है, उस पे जाइए। उसमें आपके पास लर्निंग है पूरे गेम। आपका बच्चा अगर छोटा है तो उसको क्रिएटिव गैलीलियो करके टून डेमी करके उस पे ले जाइए। उसमें वो अपने जो लिटिल कृष्णा, शक्तिमान, छोटा भीम कैरेक्टर के साथ में पढ़ाई करते हैं। वो कैरेक्टर के साथ उनकी कंपटीशन होती है, मैथ्स में, फिजिक्स में, रनिंग में। तो ये गेम डेवलपर भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बंदूक वाले गेम बनते हैं। सर ये कंटिन्यू हमेशा चलते रहेगा, गेमिंग इतना इंटरेस्टिंग है। तो इनका एक क्वेश्चन देखो, हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, मैं आपको अंदाज बता दूं कि एक जमाना था हम लोग बुक्स पढ़ा करते थे, राइट? एक जमाना था जब डिजिटल इकोसिस्टम ने टेक ओवर कर लिया, तो आज हम डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी में जी रहे हैं। कौन से इकोनॉमी में? डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी में जी रहे हैं। अब ये डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी और उसकी जो इकोसिस्टम है वो इतनी बड़ी है कि पहले एक कोई भी चीज आती तो एक हम लोग गूगल करके विकिपीडिया देखते, याद है विकिपीडिया? क्योंकि हम उसको पढ़ते थे। अभी देखते क्या? अभी हमको वीडियो देखना पड़ता है। तो ध्यान में रखना, देयर आर 3 V's which are going to rule the world for the next 10 years. One is called voice, because that's the simplest thing. जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा एक कुक है, बिहार से आता है, उसको बोला मैं दरभंगा के पास रहता हूँ, बोला कहाँ है दरभंगा, बता मेरे को। तो ऐसा मोबाइल पे दरभंगा बोलता है और फिर ऐसा मैप आके मेरे को दिखाता है, क्योंकि दरभंगा लिखना नहीं आता। लेकिन देखो वॉइस का कमाल, उसको बोलो कि आज मेरे को यानी
रेडिश के पैकेज बना दे तो वो जाता है यूट्यूब पे रेसिपी ढूंढ के कर दे। तो वॉइस इंपॉर्टेंट हो गया, वर्नाक्युलर भी इंपॉर्टेंट। वर्नाक्युलर यानी सब वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस जो है तमिल, तेलुगु, यानी उड़िया, बंगाली, कहाँ से कुक आ जाए तुम्हारे घर में समझ में आया, उसके लिए वर्नाक्युलर भी जरूरी। So voice, vernacular and video is going to rule the world for the next 10 years. So if you are in these three businesses, you are going to flourish. Because nobody wants to consume and read. Very difficult to convince people to read. They want to watch videos. And who is going to create all those videos? The people in the film industry and AVGC industry are going to make the videos को। तो आप बोलते क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आज आप भी तो वीडियो देख देख के बड़े हो रहे। तो वीडियो कौन क्रिएट करेगा? अब वो सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलता है। अगर गेम खिलाओ तो जल्दी समझ में आता है बच्चों को, बड़ों के भी जल्दी समझ में आता है गेम खिलाओ। लेकिन हमने गेम बनाया है आईएनजी वैश्या के लिए कि वो एक ही टाइम पे आपको सब लोगों को एक ही गेम खिलाना है और वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिंदगी के कोई 15-20 जहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप क्या चीजें लेके आगे जाओ। तो जो इंश्योरेंस रहता है वो विनर रहता है। समझ में आया आपको? ये भी तो गेम हो सकता है और छोटे बच्चे क्यों खेलेंगे, बड़े भी खेलेंगे। Let me say कि from nowhere in the morning to somewhere in the inaugural session to everywhere in then to now here. With this I would like to ask Mr. Monaji to felicitate Ashish sir for this wonderful insight, इतना knowledgeable session. Thank you sir. आखिरी बोली अब रख दें कि नहीं रखनी है? क्या? आखिरी बोली सरदार वाली। Sir, सरदार sir. थैंक यू सर। भले आप सरदार जी के तरह आखिरी डब्बे में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपकी इमेजिनेशन यूज करके वो डब्बे को अगर आप गार्ड रूम बना के वो एक बड़े लास्ट स्क्रीन व्यू से पूरा नजारा देख सकते हैं तो उसका मजा ही अलग है। दूसरी तरह का एक्सपीरियंस सर ने हमें दिया। With this, I would like to end first day's session. कल सुबह 9:30 बजे right on time we will be listening on